Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and assalamu alaikum to everyone. Today is our first maths class. In this class we will discuss about our maths book, course content, and then we will start our topic. So first of all, I want to tell you about your maths book. We will study two books in class 7, in which first book name is Mathematics, a textbook for grade 7, Khyber Pakhtunkhwa Textbook Board, Peshawar, and the second book is Mathematics, a textbook for grade 8, Khyber Pakhtunkhwa Textbook Board, Peshawar. So therefore, in our course content, some topics are taken from book 7 and some topics are taken from book 8. So let's come to the course content. As you know that in mathematics we have three main branches, which is arithmetics, algebra and geometry. So we will discuss all these portions and the chapters included in these three portions one by one. So first of all, in arithmetical portion we will study about chapter first, sets. This chapter is taken from book 7. Chapter 1 again, sets, and this chapter is taken from book 8. Chapter 2, rational number from book 7. Chapter 2, real number from book 8. Chapter 3, decimal from book 7. Chapter 4, exponents from book 8. And in algebraical portion we will study chapter 8, algebraic expressions from book 7. Chapter 9, areas and volumes from book 8. In geometrical portion we will study chapter 10, fundamentals of geometry from book 7. Chapter 7, fundamentals of geometry from book 8. At the end of my lecture, I will send you the picture of this course content, and you can also take the screenshot of the course content from this video. And now come to the topic. Our topic is sets. The topic is sets from book 7. So you have to open your books, your maths book of grade 7. Girls, you must have your practice notebooks and pen with you during the lecture to note down the important point of the lecture. Okay, now come to the topic. In your previous class you have learned about sets and you know very well that what is set, but I am just going to recalling you that what exactly a set is and what is its important point, right? So first of all, let's see the definition of set. A set is a collection of well-defined and distinct objects. Right, a set is a collection of well-defined and distinct object. Well-defined means that terms which can be easily defined. Let's see the example that the set of natural numbers from 1 to 10. The set of natural number from 1 to 10. So this is a very well-defined statement. जिसे सुन के ये आपके माइंड में फ़ौरन आता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 ये कौन से, तो आपके माइंड में फ़ौरन आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारे हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 से 10 तक, जो कि हमारे इस एग्जाम्पल में हमें गिवन है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, वेल डिफाइंड है, जिसे देखते ही हमारे माइंड में फ़ौरन से एक एलिमेंट की लिस्ट आ जाती है कि हाँ इस सेट में हमसे ये एलिमेंट्स मांगे हैं, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिस्टिंक्ट. Distinct means to change from each other. Each element of set should be changed from each other, right? Let's see. जैसे कि यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर एक एलिमेंट एक दूसरे से चेंज है और कोई भी एलिमेंट दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ। ये आप लोग पढ़ भी चुके हो, ये पॉइंट सबको याद भी होगा दैट देयर इज़ नो रिपीटेशन इन द एलिमेंट ऑफ सेट। अच्छा, एलिमेंट ऑफ सेट क्या है, याद है आपको? द ऑब्जेक्ट्स, all the objects which is written inside the braces, these curly brackets, these objects are called elements of set. These are also called member of set, right? And set is represented by capital letters of English alphabet, from any capital letter A B C D E F up to Z. But here we represented this set by n. Why? Because you know that every set of numbers can be represented by its specific capital letter.
like set of natural number is represented by n, set of whole number is represented set of natural number is represented by n, set of whole number is represented by w, set of even number is represented by e, set of odd number is represented by o, etc. Right? Now come to the next example. The second example is the set of letters of English alphabet coming after U. अब आप लोगों ने इस सेट में वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो यू के बाद आते हैं, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जितने भी हैं हमारे पास A to Z, तो उसमें आपने सिर्फ उन एलिमेंट्स का सेट बनाना है विच कमिंग आफ्टर यू, एंड यू नो दैट इज़ VWXYZ, क्लियरली डिफाइंड। द स्टेटमेंट इज़ क्लियरली डिफाइंड। आपने देख लिया कि ये स्टेटमेंट आपको क्लियरली डिफाइंड है। ये आप इसको देख के ही बता सकते हो कि आपके पास सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो VWXYZ इसको आपने सेट में लिख लिया, ब्रैकेट्स को आपने इनक्लोज कर दी। हाँ जी, सेट को आप लोगों ने एक नेम भी देना है, आपने इसको किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। इस सेट का अपना कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, कोई स्पेसिफिक लेटर नहीं है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करें। तो हम लोग इस सेट को किसी भी लेटर से, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है, आप चाहे तो आप लोग किसी भी और अल्फ़ाबेट से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात और जो मैं आपको बता दूं कि जब आप एलिमेंट ऑफ सेट लिखें तो आप उसको विद द हेल्प ऑफ कॉमा एक दूसरे से सेपरेट कर दें, ठीक है। यानी हर एक एलिमेंट के बाद आपने कॉमा लगाना है। एलिमेंट ऑफ सेट विल बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ कॉमा। और सेट की एक और बात ये भी है कि सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं तो वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कैसे रिलेटेड होते हैं? अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को कह रहे हैं कि द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कमिंग आफ्टर यू, तो इसमें आपने सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखे हैं जो कि आपके पास यू के बाद आते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट लिख लें, लाइक ए लिख दे या हम लोग इसमें लिख दे बी, तो ये हमारे पास यू के बाद नहीं आते और फिर ये रिलेटेड नहीं है ये सेट। और हम लोगों ने इसमें गलत एलिमेंट्स, जब हम एक भी गलत एलिमेंट पुट कर लेंगे तो हमारे मार्क्स वहाँ पे पूरे के पूरे उस पार्ट के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो आप ये ख़ास ख्याल रखें कि जो एलिमेंट्स उस सेट में इंक्लूड नहीं है, जो उधर नहीं आते, वो एलिमेंट्स आप लोगों ने पुट नहीं करने। इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल ली थी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की, उसमें भी हमारे पास सारे नंबर जो थे वो नेचुरल नंबर थे। हम लोगों ने कोई भी ऐसा नंबर नहीं लिया कि जहाँ पे हमारे पास वो नेचुरल नंबर ना हो। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स थे। यहाँ पे भी सारे के सारे हमारे पास ऐसे लेटर्स हैं जो कि यू के बाद आते हैं। अब मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को ऐसे बता देती हूँ कि वो आप लोगों ने एग्ज़ाम्स में उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अक्सर स्टूडेंट से सिली मिस्टेक्स हो जाती है जिसकी वजह से उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं और 100 मार्क्स लेने से वो बच्चे एक एक नंबर की वजह से, दो दो नंबर्स की वजह से पीछे हो जाते हैं। जब भी आप लोग सेट्स बनाएं किसी भी ऑब्जेक्ट्स का, तो आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि सबसे पहले उसके स्टार्ट और एंड पे आप लोगों ने ब्रैकेट्स ज़रूर लगानी है। अगर आप लोगों से किसी भी एक साइड पे ब्रैकेट स्किप हो गया तो आपका वो पार्ट बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, उसके आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेकेंडली आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने हर एक एलिमेंट को 1 टाइम लिखना है। लाइक VWXYZ हमने हर एक एलिमेंट को 1 टाइम लिख लिया। अगर कोई एलिमेंट आप लोगों ने लेट सपोज W को हमने 2 टाइम लिख लिया तो ये फिर आपका ये सेट जो है तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आप लोगों के पास हर एक एलिमेंट उस सेट में एक ही बार आना चाहिए, ठीक है। और सेट को आप लोगों ने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है। अगर वो कैपिटल लेटर वो नेम क्वेश्चन में गिवन है तो आपने उसी नेम से रिप्रेजेंट करना। अगर क्वेश्चन में कोई नेम नहीं गिवन तो फिर आपने अपनी मर्ज़ी के किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से उसको रिप्रेजेंट करना है, लेकिन वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर्स का हो। और अगर सेट ऑफ नंबर्स हैं और आपको पता है कि इस सेट का अपना नेम क्या है, इसको हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर आप लोगों ने वही लेटर उसके लिए यूज़ करना है, राइट। जैसे कि हम लोग इवन नंबर के लिए कैपिटल ई यूज़ करते हैं और आपको क्वेश्चन में गिवन है द सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो फिर आप लोगों ने उसे खुद से कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करना होगा। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़, let's come to the next topic. The next topic is method of expressing sets.
मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग सेट्स मीन्स कि हम लोग सेट को कितने कितने तरीक़ों में उसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 मेथड्स हैं, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ राइटिंग। तो ये हमारे पास 3 मेथड्स हैं, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स और एक्सप्रेसिंग सेट। द फर्स्ट वन मेथड इज़ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, the second form is tabular form and the third form is set builder form। अभी मैं आप लोगों को एक ही टाइम पे ये तीनों पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अभी हम लोग सिर्फ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पहले एक्सप्लेन करेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे टेबुलर फॉर्म पे, इसी मेथड से टेबुलर फॉर्म करेंगे एंड देन हम लोग जाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म पे। और आप लोग 6 क्लास में ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म तकरीबन पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे आप लोग के लिए इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आप लोग इजीली इसके क्वेश्चंस भी कर लोगे और इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगी। Because now we are going to starting our exercise, but before starting the exercise I just want to recalling you the set of numbers. You have learned all the set of numbers in your previous class 6. So here I write some set of numbers. Let's see. The first one set is a set of natural number. यहाँ पे हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ये उसके एलिमेंट्स है 1 2 3। अब नंबर्स हमारे पास कभी भी स्टॉप नहीं होते, नंबर्स नॉन स्टॉप है, तो हम लोग इसको यहाँ पे ये 3 डॉट्स लगाएंगे। 3 डॉट्स इसको बोलते हैं एलिप्सिस और ये शो करता है कंटिन्यू ऑन को और सो ऑन को, जो चीज़ हमारे पास नॉन स्टॉप होती है। अब हम लोग इतनी ज़्यादा तादाद में नंबर्स को नहीं लिख सकते, तो हम लोग यहाँ पे इस कंटिन्यूशन के साइन को, इस अप टू सो ऑन के साइन को यहाँ पे लगाएंगे, जिसका मतलब है कि नंबर्स आगे भी कंटिन्यू हो रहे हैं। दिस नंबर्स दिस 3 डॉट्स इज कॉल्ड एलिप्सिस। नेक्स्ट सेट हमारे पास है सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स में हमारे पास आते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से और ये स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। फिर अगला सेट है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स, जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट होता है कैपिटल Z से और इसके एलिमेंट्स हमारे पास है 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। सेट ऑफ इंटीजर्स में आप अगर देखें तो ये बिल्कुल ही होल नंबर्स का सेट है, बट यहाँ पे आपके पास इंटीजर्स के सेट में इन होल नंबर्स के साथ प्लस माइनस के साइन आए हुए हैं। बाकी इसमें सारे नंबर 0 से स्टार्ट होके अप टू सो ऑन एक ही सीक्वेंस में जा रहे हैं, जस्ट हर एक नंबर के साथ प्लस माइनस का साइन आया हुआ है। The next set is set of even numbers. It is represented by capital E and the elements are 2 4 6 8 10। यहाँ पे हमारे पास वो एलिमेंट्स आएंगे जो 2 के मल्टीपल्स होंगे, जो 2 के टेबल पे कम्प्लीटली डिवाइड होंगे। एलिमेंट्स आएंगे जो 2 के मल्टीपल्स होंगे, जो 2 के टेबल पे कम्प्लीटली डिवाइड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेट इज सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स हमारे पास रिप्रेजेंट होगा कैपिटल O से और इसमें हमारे पास वो नंबर्स आएंगे, वो एलिमेंट्स आएंगे जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होंगे और ये स्टार्ट होगा 1 से, 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट सेट हमारे पास है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अच्छा, प्राइम नंबर्स में आप लोगों ने ये ख़ास ख्याल रखना है कि ये स्टार्ट होता है 2 से। ये सेट 2 से स्टार्ट होता है और इसमें सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो 1 के टेबल में डिवाइड होते हैं और जो अपने टेबल में डिवाइड होते हैं, राइट। प्राइम नंबर्स आर द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इट्सेल्फ। ये अपने और 1 के टेबल के अलावा किसी भी टेबल से एग्जैक्टली कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते। अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो 7 के बाद 9 लगा देते हैं, जैसे कि वो लोग ऑड नंबर में लगाते हैं, तो ये यहाँ पे आपका पूरा सेट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 9 आपके पास ऑड नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर में आपको मैंने डेफिनेशन बता दी है कि जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होता है और 1 के टेबल पे डिवाइड होता है। लेकिन अगर आप 9 लगा देंगी तो 9 तो हमारे पास 3 पे भी डिवाइड होता है, ठीक है। 9 अपने टेबल में और 1 में तो डिवाइड होता है, बट उसके अलावा वो 3 के टेबल में भी आता है। सो 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 9 इज़ एन ऑड नंबर। प्राइम नंबर में हमारे पास है 2 3 5 7 11 13 अप टू सो ऑन, राइट। ओके, अगला सेट हमारे पास है, नेक्स्ट सेट इज़ सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच इज़ नॉट प्राइम नंबर्स और विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स।
वो नंबर्स जो कि प्राइम नहीं होते उनको भी कॉम्पोजिट बोला जा सकता है। और एक दूसरी डेफिनेशन इसकी ये भी है कि जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, यानी वो नंबर जो अपने और वन के अलावा किसी भी एक टेबल से या एक से ज़्यादा टेबल से डिवाइड हो, तो वो नंबर हमारे पास कॉम्पोजिट है। अपने टेबल पे और वन पे तो हर एक नंबर डिवाइड होता है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो नंबर किसी और टेबल से भी डिवाइड होते हैं तो वो वाले नंबर्स हमारे पास होते हैं कॉम्पोजिट नंबर। और सिंपली आप ये कह सकते हो कि द नंबर विच इज़ नॉट प्राइम इज़ कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर हमेशा स्टार्ट होते हैं 4 से, 4, 6, 8, 9, 10, बिकॉज दीज नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ये नंबर आगे भी कंटिन्यू है। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज में आप देखें कि आपके पास एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन जो है तो उसका टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी आप लोगों को डिफरेंट सेट्स गिवन है और उसको आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, मैं जस्ट आपको यहाँ पे रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की डेफिनेशन लिखी हुई है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, इसमें क्या करते हैं। इन दिस मेथड इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट सच अ सेंटेंस इज रिटन विच मेक ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट क्लियर। यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लोग एलिमेंट्स की फॉर्म में सेट को नहीं लिखते। जिस तरह हम लोग एक सेट बनाते हैं ना, उसमें हम लोग हर एक एलिमेंट को लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं, ब्रैकेट्स लगाते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ब्रैकेट्स, कॉमा, एलिमेंट्स कुछ भी नहीं होता। क्या होता है, एक सेंटेंस की फॉर्म में सेट को डिफ़ाइन किया होता है, ठीक है। और उस सेंटेंस को पढ़ के हमें सेट पूरा का पूरा समझ में आ जाता है कि अब ये इस सेंटेंस में कौन से सेट की बात हो रही है। तो चलिए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सेट ऑफ ऑड नंबर्स है और ये लेस देन 20 है। अब हमें पता चल गया है कि ये सेट क्या है, ऑड सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 20। तो हम अब इजीली इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बना सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बनाने का तरीका क्या है, आपने सेट की नेम की जगह सेट के नेम को एज इट इज़ लिखना है, इक्वल की जगह आपने इज़ लगाना है और ब्रैकेट्स की जगह आपने लगाना है, ये ब्रैकेट सेट का है तो इसकी जगह आएगा द सेट ऑफ। फिर इस ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, जो डेफिनेशन है, वो आपने लिखनी है द सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 20। तो ये आपके पास बन जाएगा x इज़ द सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 20। ये हो गई डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसको आप एक दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, वो ये कि आप इन एलिमेंट्स को काउंट कर दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पास 10 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। दोनों तरह से आप लिख सकते हो, दोनों तरह से आपका एक्सेप्ट होगा। अब सेकंड एग्जांपल है y इज़ इक्वल्स टू AEIOU। AEIOU को आप जानते हैं कि ये कौन से एलिमेंट्स हैं, ये है वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसी तरह हम लिखेंगे इसको, सेट की नेम की जगह सेट का नेम आएगा, इक्वल की जगह इज़ आएगा, ब्रैकेट्स की जगह आएगा द सेट ऑफ, और सेट के अंदर जो एलिमेंट की डेफिनेशन है फिर हम आगे उस डेफिनेशन को लिखेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा y इज़ द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। लोगों ने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आपके पास सेट के एलिमेंट्स जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स लिखे हुए हैं सेट के एलिमेंट्स में, तो आप लोगों ने सेट के अंदर उन लेटर्स को स्मॉल लेटर्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सेट का नेम हमेशा कैपिटल लेटर होगा और सेट के अंदर जो आपके पास एलिमेंट्स होंगे, जो आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लिए गए होंगे, तो वो आप लोगों ने हमेशा स्मॉल लेटर में लिखने हैं। और अगर आप लोगों ने किसी भी एक एलिमेंट को कैपिटल लेटर में लिख लिया तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों ने सेट के नेम को स्मॉल लेटर में लिख लिया तो आपके मार्क्स तब भी डिडक्ट होंगे, वो पूरा का पूरा पार्ट कैंसिल होगा। तो ये बात याद रखें कि सेट का नेम हमेशा कैपिटल लेटर में हो और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में हो, राइट। ओके गर्ल्स, अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी होगी बुक 7 से, एक्सरसाइज 1.1 एंड पेज नंबर 4। आप सब लोग अपनी बुक्स ओपन करें और जो जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के होते जा रहे हैं उसको आप पेंसिल से टिक मार्क करते जाएं, ठीक है। वहाँ पे आप देखेंगे पेज 4 पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर भी दी हैं, आप लोग 6 क्लास में अच्छी इसकी प्रैक्टिस कर भी चुके हो, तो ये सब अब आप लोगों को खुद ब खुद आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट जो है a इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबको क्लियरली पता है कि ये किस चीज़ का सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। कितने नेचुरल नंबर्स हैं, 10।
और कौन से नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो ए इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये हो जाएगी इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फिर नेक्स्ट पार्ट है बी इज़ इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे आप एलिमेंट्स को देखें, ये किस चीज़ के एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स किस चीज़ को शो कर रहे हैं, ये आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कौन से लेटर्स को शो कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट लेटर्स है। कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके पास शो कर रहा है बी इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 6 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इसी तरह आप लोग पार्ट थर्ड देखें कि थर्ड पार्ट इज़ सी इज़ इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। अब आप सबसे पहले देखेंगे कि ये आपके पास जो गिवन सेट है इसके अंदर एलिमेंट की क्या डेफिनेशन है, ये आपके पास ये एलिमेंट कहाँ से लिए गए हैं, ये आपको नज़र आ रहा है 2 4 6 8 10, ये हमारे पास इवन नंबर्स है, ठीक है। और ये कितने इवन नंबर्स हैं, आप इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5। तो अब आप लिखेंगी C इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। और अगर आप देखें तो ये सारे जो आपके पास एलिमेंट्स है ये आपके पास मल्टीपल्स ऑफ 2 है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकती हैं, आप पहले काउंट करिए ये कितने मल्टीपल्स हैं, 1 2 3 4 5। तो आप लिखेंगी C इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2। इसको आप दो तरह से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4, D इज़ इक्वल्स टू 2 3 5 7 11 13 17 19। आप इस सेट की तरफ देखें, ये आपके पास कौन से नंबर्स का सेट है, ये आपके पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। फिर आपके पास ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कहाँ से कहाँ तक है, ये आपके पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, लेकिन ये आपके पास डिजिट 20 से लेस जितने भी प्राइम नंबर्स है ये उनका सेट गिवन है। तो आप जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो आप उसी तरह जिस तरह मैं आपको बता चुकी थी, D इज़ द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20, ठीक है। इसको आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, आप काउंट करें कि ये कितने प्राइम नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप ऐसे भी लिख सकती हैं D इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स, राइट। अच्छा, अब हमारे पास जो एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास रिलेटेड टू टेबुलर फॉर्म है। तो सबसे पहले हम लोग टेबुलर फॉर्म देखते हैं कि टेबुलर फॉर्म क्या होती है और उसमें हम लोग सेट को किस तरीके से लिखते हैं। टेबुलर फॉर्म की यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है, इन दिस फॉर्म मेंबर्स ऑफ सेट आर रिटन विद इन ब्रेसेस एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमर्स। इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, जितने भी सेट के मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग ब्रेसेस में लिखते हैं और हर एक एलिमेंट के बाद हम लोग कॉमा लगाते हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमारे पास है सेट ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। ये हमें बता रहे हैं कि हमने कौन सा सेट बनाना है, हमने फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का सेट बनाना है। सबसे पहले जब हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग सबसे पहले सेट को नेम देंगे। सेट को हम लोग, अगर क्वेश्चन में कोई भी आपके पास सेट का नेम मेंशन नहीं है तो फिर हम लोग वहाँ पे सेट को किसी भी नेम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने सेट को ओ से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे है सेट ऑफ ऑड नंबर्स एंड यू नो दैट द सेट ऑफ ऑड नंबर्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ओ। तो यहाँ पे मैंने लिया है कैपिटल ओ। अब हमारे पास डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं कि मेंबर्स ऑफ सेट को हम लोग ब्रेसेस में लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे ब्रेसेस लगाए हैं, हम सबसे पहले ब्रेसेस लगाएंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास मेंबर्स ऑफ सेट में कौन से एलिमेंट है। तो अब आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल में कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। आपको पता है कि फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स हमारे पास कौन से हैं, दैट इज़ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ठीक है। जब आप एलिमेंट्स लिख लें उसके बाद आप एक दफ़ा काउंट कर लें कि ये वाकई 10 है या नहीं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काउंट मैंने इसीलिए किया क्योंकि सम टाइम जब हम लोग एलिमेंट्स लिख लेते हैं तो कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनसे एक एलिमेंट स्किप हो जाता है या एक एलिमेंट उनसे ज़्यादा आ जाता है। और सेट में अगर आपसे एक एलिमेंट भी कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो आपका वो सेट, वो पार्ट कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने बहुत केयरफुल रहना है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। Here we have
क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ दैट राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी पार्ट्स हैं उन सब सेट को हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पार्ट फर्स्ट इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, हम लोग इसकी टेबुलर फॉर्म बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग सेट के नेम से स्टार्ट करेंगे। पार्ट में देखेंगे क्वेश्चन में कि हमारे पास सेट को किस नेम से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे सेट के लिए कोई भी नेम नहीं लिखा गया, सेट को किसी भी नेम से रिप्रेजेंट नहीं किया गया। फिर अगर सेट का कोई भी नेम नहीं है, फिर हम सोचेंगे कि क्या इस सेट के लिए अपना कोई स्पेसिफिक लेटर था जिससे हम इस सेट को रिप्रेजेंट करते थे। तो सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 के लिए हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक लेटर नहीं था रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इसके बाद हम लोग इस सेट को किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। मैंने यहाँ पे कैपिटल ए लिया है। नेम देने के बाद अब हम लोग इक्वल का साइन लगाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग ब्रेसेस लगाएंगे। ब्रेसेस में फिर हम अपने एलिमेंट्स को लिखना स्टार्ट कर देंगे। हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड यू नो दैट इट इज़ 5, 10, 15, 20, 25 एंड ब्रैकेट्स क्लोज्ड, right? Next part is the set of natural numbers between 10 and 20। इसकी भी जब हम टेबुलर फॉर्म बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट नेम से लेंगे। सेट के लिए क्वेश्चन में कोई भी नेम मेंशन नहीं है, बट वी नो दैट के सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। तो यहाँ पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन से। अब देखिए हमारे पास इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं। तो एलिमेंट्स के लिए इन्होंने जो हमें लिमिट बताई है दैट इज़ बिटवीन 10 एंड 20, मीन्स कि हम लोग नेचुरल नंबर्स के वो नंबर्स लिखेंगे जो 10 और 20 के बीच में आ रहे हैं। 10 और 20 उसमें नहीं आएगा, राइट क्योंकि जब बिटवीन की कंडीशन आ जाती है तो फिर वो दोनों नंबर सेट के एलिमेंट में इंक्लूड नहीं होते। उनके बीच में जो नंबर्स आते हैं फिर हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ सेट में वो नंबर्स आएंगे, राइट। तो सेट का नेम हो गया एन, इसके बाद इक्वल का साइन, फिर उसके बाद ब्रेसेस। उसके बाद अब जब हम एलिमेंट लिखेंगे तो 10 नहीं आएगा। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड देन ब्रैकेट क्लोज, बिकॉज 20 भी हमारे पास इस सेट के एलिमेंट्स में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास वो नंबर्स हैं जो बिटवीन 10 एंड 20 आ रहे हैं। पार्ट थर्ड इज़ द सेट ऑफ द नेम्स ऑफ डेज इन अ वीक। अब यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स जो हम लोग सेट में लेंगे वो हमारे पास क्या होंगे? नेम्स ऑफ डेज इन अ वीक, यानी एक वीक में हमारे पास जो डेज होते हैं हम उनके नेम्स लिखेंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसमें देखे इस सेट का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। हमें पता है कि हमारे पास इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है और ना ही इस पार्ट में हमें सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नेम बताया गया है। तो मीन्स कि हम इस सेट को खुद से किसी भी कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, जो मैंने यहाँ पे बी लिया है। और हमारे पास फिर इसके बाद इक्वल का साइन आएगा, उसके बाद ब्रेसेस आ जाएंगी। ब्रेसेस में हम लोग एलिमेंट्स लिखेंगे। एलिमेंट्स आपको पता है कि एक वीक में जितने डेज़ होते हैं उनके हम लोग नेम्स लिखेंगे, दैट इज़ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। उसके बाद ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएंगी और हर एलिमेंट के बाद आप लोगों ने कॉमा पुट करना है। इसके बाद पार्ट 4 इज़ द सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स लेस देन 10। अच्छा, सबसे पहले देखिए कि सेट का नेम क्या होगा। सेट का नेम यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं है, बट इन्होंने कहा इवन नंबर्स। सो वी नो दैट इवन नंबर्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई। तो हमने सेट का नेम ले लिया है कैपिटल ई। उसके बाद इक्वल का साइन, ब्रेसेस। अब एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? पॉजिटिव इवन नंबर्स, दैट इज़ 2, 4, 6, 8। पॉजिटिव इवन नंबर्स लेस देन 10। 10 से छोटे जितने भी पॉजिटिव इवन नंबर्स होंगे वो हम लोग यहाँ पे इस सेट में लेंगे। यहाँ बात हुई है सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स की। तो जिन नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता वो नंबर्स ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, उनके साथ प्लस के साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर पॉजिटिव की जगह बात नेगेटिव की आती तो फिर नेगेटिव के लिए माइनस का साइन लगाना ज़रूरी है, बट यहाँ पे ओनली पॉजिटिव कहाँ है? तो यहाँ पे इन नंबर्स के साथ जब कोई साइन नहीं है, तो हम सबको पता है कि जब कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन है? दैट इज़ प्लस साइन। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये नंबर हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं? इन दिस फॉर्म ऑफ अ सेट अ जनरल एलिमेंट स्मॉल एक्स एंड इट्स करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज मैंशनड विच इज़ कॉमन टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास सेट के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वो वेरिएबल स्मॉल ए बी सी से लेकर स्मॉल एक्स वाई जेड तक कोई भी वेरिएबल हो सकता है, बट जनरली हम लोग एक्स को यूज़ करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ कि हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाते हैं। अगर ये स्टेप्स आपको याद हो जाएंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म को आप इजीली फिर बना सकते हो। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इन सब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है एक्स से। यहाँ पे मैंने आपके लिए स्टेप्स लिखे हैं। एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। एक्स हमारे पास क्या है, वो हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। यानी आपने बताना है कि x जो आपने लिया है वो एलिमेंट्स कहाँ से लिए गए हैं, उन एलिमेंट्स की नेचर क्या है, ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है उन एलिमेंट्स की। तो वो एलिमेंट्स आपके पास कौन से सेट से बिलोंग्स कर रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हमने लिख लिया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और इसको हम सिंबल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिंबॉलिकली हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस सिंबल के बारे में आप 6th क्लास में पढ़ चुके हो। इस सिंबल का मतलब है इज़ अ मेंबर ऑफ, या फिर इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। अच्छा, थर्ड आप देखेंगे कि ये एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक लिए गए हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में आप देखें ये एलिमेंट्स हमारे पास जो लिए गए हैं वो 1 से लेकर 10 तक लिए गए हैं। यानी ये एलिमेंट्स ये 10 और 10 से लेस जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में इंक्लूड है। 10 and less than 10 all the elements are included in this set। तो हमारे पास क्या है, x is less than and equals to 10। यानी x means एलिमेंट्स क्या है, लेस देन 10 से लेस भी हैं और इक्वल टू 10, और 10 भी इसमें इंक्लूड है, तो इसको हम कहेंगे लेस देन एंड इक्वल्स टू 10। अच्छा, यहाँ पे इसके लिए ये सिंबल यूज़ हुआ है लेस देन एंड इक्वल्स टू 10। ये सिंबल यूज़ होता है जब आपके पास लेस भी होगा और इक्वल भी होगा, ठीक है। यहाँ पे ये सिंबल सिर्फ ये ऊपर वाला सिंबल ये यूज़ होता है लेस के लिए, और इसके नीचे ये जो फिर आपके पास लाइन आती है ये शो करता है इक्वालिटी को। अच्छा गर्ल्स, अब यहाँ पे हमने इस सेट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। हमने फाइंड आउट की कि इस सेट के एलिमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम लोग इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके इस सेट के एलिमेंट्स को सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो वो सिंबॉलिकल फॉर्म हमारे पास होगी सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखते हैं कि हम लोग कैसे इस सेट को सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले सेट का जो नेम गिवन था, सेट का नेम वही रहेगा एज इट इज़ जो हमारे पास था, z इक्वल्स टू, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ब्रेसिस भी लगेंगी। उसके बाद हमने जो वेरिएबल लिया था वो क्या था, x। उसके बाद हम लोग लिखेंगे x वो वेरिएबल है जो हमने लिया था। फिर उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, सच दैट के लिए हमारे पास ये सिंबल यूज़ होगा। सच दैट के बाद क्या था, सच दैट के बाद हमारे पास लिखा था x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हम उसे सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारे पास जो सिंबल है ये यूज़ होता है बिलोंग्स टू और एज अ मेंबर ऑफ के लिए, ठीक है। फिर हमारे पास इसकी एक दूसरी प्रॉपर्टी भी थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, x इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 10, और उसके लिए भी मैंने आपको सिंबल बताया था कि लेस देन एंड इक्वल्स टू के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है, तो x इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 10, और इसके बाद फिर आप लोगों ने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। यहाँ पे हमारे पास देखिए ये 2 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास यहाँ पे हमने लिखी है, तो इन 2 प्रॉपर्टीज़ के बीच में हमारे पास कॉमा आएगा, ठीक है। ये अब हमारे पास ऐसे हम इसको पढ़ेंगे, z इज़ इक्वल्स टू x such that x belongs to natural number and x is less than and equals to 10। अब देखिए इस सेट में हमारे पास ये x जो है ये हमारे पास कोई भी वेरिएबल है। ये जो हमारे पास स्लैश की तरह सिंबल है इसको हम बोलते हैं सच दैट। फिर इस सिंबल को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू या एज अ मेंबर ऑफ। फिर यहाँ पे ये जो हमारे पास सिंबल यूज़ हुआ है इसको हम बोलते हैं लेस देन एंड इक्वल्स टू। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर अपनी तरफ से लिखा है कि आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले आपके पास जो सेट का नेम गिवन होगा वो एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे z था इसीलिए मैंने z लिखा।
इक्वल का साइन आएगा, उसके बाद ब्रैकेट्स आएंगी, ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले हम वेरिएबल को लिखेंगे, जो वेरिएबल हम लोग उस क्वेश्चन में या उस एग्जांपल में यूज़ करें। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जनरली हम लोग वेरिएबल एक्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल आएगा, उसके बाद सच दैट का सिंबल आएगा, सच दैट के सिंबल के बाद फिर हमारे पास उस सेट में एलिमेंट्स की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं हम फिर उन प्रॉपर्टीज़ को लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? टू रिप्रेजेंट an element of set symbolically while using the properties of a given element of set। यानी कि हम किसी भी गिवन सेट को अगर सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखेंगे, उस सेट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके जो हम सिंबॉलिकल फॉर्म बनाएंगे, तो उस सिंबॉलिकल फॉर्म को हम कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। राइट, तो ये आपके पास थी सेट बिल्डर फॉर्म की एग्जांपल। अब हम लोग एक्सरसाइज में सेट बिल्डर फॉर्म के क्वेश्चंस करेंगे। The last question of the exercise is write the following sets in set builder form. Part first is A equals to 1, 2, 3 up to 20. Now we have to convert this tabular form into set builder form. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, सेट का नेम लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। एज इट इज़ हम लोगों ने सेट का नेम लिख लिया, फिर हम लोग इक्वल का सिंबल लगाएंगे, फिर उसके बाद हमारे पास सेट का सिंबल आएगा विच इज़ ब्रेसेस। अब हम लोगों ने इन सब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है एक जनरल वेरिएबल से, जो कि हम कोई भी ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एक्स ले रही हूँ। ठीक है, जनरल वेरिएबल इज़ एक्स। अब हमारे पास इन वेरिएबल की नेचर क्या है? ईच एंड एवरी एलिमेंट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो हम लोग लिखेंगे एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। अब आप देखें कि इस सेट में हमारे पास कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट्स इंक्लूडेड है, तो हमारे पास देखिए 20 भी इंक्लूडेड है और 20 से लेस भी सारे एलिमेंट्स हमारे पास इस सेट में इंक्लूड है। तो हम लोग लिखेंगे x इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 20। ये मैं आपको एग्जांपल में समझा चुकी हूँ इस सिंबल के बारे में कि ये सिंबल हमारे पास किस चीज़ को शो करता है। दिस सिंबल शोज less than and also equality, right? So x is less than and equals to 20. Second part is b equals to a e i o u। उसी तरह बिल्कुल b एज इट इज़ आ जाएगा, इक्वल का सिंबल, फिर ब्रेसेस आ जाएंगी, फिर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल x से, सच दैट अब इन एलिमेंट्स की नेचर क्या है? ईच एंड एवरी एलिमेंट इज़ टेकन फ्रॉम द सेट ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हमारे पास ईच एंड एवरी एलिमेंट यहाँ पे क्या है? वावल है, तो हम लिखेंगे x इज़ अ वावल, राइट, और ब्रैकेट हम लोगों ने क्लोज कर देनी है। अब पार्ट थर्ड देखें, C इक्वल्स टू पेशावर, लाहौर, कराची, क्वेटा। ये आपके पास जो सेट के एलिमेंट्स है ये कहाँ से लिए गए हैं? ये प्रोविंसेस के कैपिटल के नेम्स है आपके पास, राइट। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज़ द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। तो हम लोग लिखेंगे C इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज़ द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। आप लोगों ने सेट की नेचर को देखना है कि वो सेट का हर एक एलिमेंट कौन से सेट से लिया गया है, राइट। We have part 4, D is the set of odd numbers। आपको पार्ट 4 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है, आप लोग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को भी सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सेट का नेम लिखना है। सेट का नेम हमें क्वेश्चन में गिवन है D, वो हमने लिख लिया। इसके बाद हम लोग इसकी जगह लगाएंगे इक्वल का सिंबल। इसके बाद बात आती है द सेट ऑफ की। द सेट ऑफ की जगह हमारे पास ये ब्रेसेस आ जाएंगी। इसके बाद फिर हम लोग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे जनरल वेरिएबल से विच इज़ x। उसके बाद आएगा सच दैट का सिंबल। सच दैट के बाद हमने अब सेट के एलिमेंट्स की नेचर बतानी है कि वो हमारे पास किस चीज़ का सेट है। आप देख सकते हैं कि सेट में कोई लिमिट नहीं बताई, जस्ट ये बताया कि ये हमारे पास ऑड नंबर्स का सेट है। मीन्स कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट इज़ एन ऑड नंबर। तो हम लोग लिखेंगे x इज़ एन ऑड नंबर, राइट। हम लोग द सेट ऑफ को यहाँ अंदर ब्रेसेस में नहीं लिखेंगे बिकॉज द सेट ऑफ की जगह हम लोगों ने ब्रेसेस लगा दिए बोथ साइड पे। अब हम लोग ब्रैकेट्स, इन ब्रैकेट्स के अंदर जस्ट लिखेंगे x सच दैट x इज़ एन ऑड नंबर। अंदर सेट ऑफ की कोई बात नहीं आएगी, राइट।
गर्ल्स, यहाँ पे हमारी आज की एक्सरसाइज फिनिश्ड हो जाती है। आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को अपने पास नीट कॉपी पे सॉल्व करना है। आपको सेट ऑफ कॉपीज़ में एक येलो कलर का रजिस्टर गिवन है। आपने उस रजिस्टर पे सबसे पहले कोर्सपोंडेंट नोट करना है। उसके बाद आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज से पहले जो डेफिनेशंस मैंने आपको करवाई हैं वो डेफिनेशंस आप लोगों ने अपनी बुक पे मार्क करके वहाँ से लर्न करनी है। उन डेफिनेशंस को आपने कॉपी पे नोट नहीं करना। एक्सरसाइज आपने डायरेक्ट स्टार्ट कर लेनी है। एक्सरसाइज का ईच एंड एवरी पार्ट आप लोगों ने अपनी कॉपी पे सॉल्व करना है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।